For the latest film interviews, reviews, and everything making news in pop culture, subscribe to Film Companion now. Team, good luck. Such a pleasure to have you on Film Companion. First of all, I want to say how much I enjoyed the show, both seasons. Thank you for putting such a smile on my face. But in the second one, I also cried, and I wasn't expecting to do that. So I want to begin with the creators. So Shreyansh, Palash, Durgesh, talk to me about creating this series where it's ordinary people, ordinary lives, small town, middle class family. कुछ ड्रामा नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा कोई ऐसा, मतलब some सनसनी खेत खुलासा type situation, and yet we're watching, yet we're emotionally invested. Tell me, how hard is it to do that, and what are you most mindful of when you're writing? Thank you, Anu ma'am, for all the appreciation. I feel, see, with the TVF DNA and the motto Lights Camera Experiment, the journey of the show pretty much began 4 years back when Nikhil had actually written a pilot, and we all heard it, and then it was like कि यार ये बहुत different है, मतलब इसे बनाए क्या करे, and then we actually decided to bet upstream कि सारे violence वाले shows हो रहे थे, मारधाड़ हो रही थी, एक tier 2 की image बनी हुई है कि वहां पर लोग रिवेंज लेते हैं, गाली गलौच होता है, सब कुछ होता है, लेकिन something like this, a family like this is actually what the masses have lived, and we have all seen this. मतलब हमारे घरों में ये बात होती है कि अरे दूध खत्म हो गया तो बिना दूध की चाय पीनी पड़ी, और उसके अराउंड अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन हो जाता है. आई थिंक पलाश एंड दुर्गेश कैन एक्चुअली टेल यू how we have executed is how the writing room has been for Durgesh. But at the core of it, ma'am, this is our family, this is our story. So more than sweating it out, it has actually been about reliving those experiences, reliving the times with our parents, our families, और वो कहानियां बताने में फिर अपने आप बहुत मजा आने लगा. I'll tell you, I'm from UP also. और वो जो तहरी की बात हुई ना, मुझे लगा कि ये तो मेरे घर की बात है, because हम लोग पीले चावल बोलते थे. And when my mother was very bored, exactly वही सिनारियो होता था कि आलू डाल दो और कोई एक मटर फेंक दो और वो पीले चावल बन जाते थे. And I was like, oh my God, they know my family. That's the feeling that you get when you watch this show. The other very interesting thing is the chemistry between the 4 actors. You never feel कि ये actually माँ बाप और बेटे नहीं हैं और भाई नहीं है. How did the 4 of you create that? What goes into it? मुझे लगता है सीजन 1 में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई because of 10 days of rehearsal. मुझे लगता है ऐसा कुछ भी आपको अचीव करना हो तो साथ में खाना पीना, जोक्स करना, ये सब बहुत जरूरी होता है. तो हमने 10 दिन एक्चुअली साथ में गुजारे. हमने लाइंस रिहर्स की, हमने वर्कशॉप की, जहाँ पे वो आइस ब्रेकिंग हुई, क्योंकि मैं जमील को पहचानती थी पहले से, लेकिन फर्स्ट टाइम आई मेट हर्ष एंड अनु वैभव. सो मुझे ये दोनों पता नहीं थे, एंड इवन आई वाज फर्स्ट टाइम वर्किंग विद टीवीएफ. तो मुझे लगता है कि उस वर्कशॉप्स की वजह से, रिहर्सल की वजह से हम बहुत साथ आए. और उसके बाद जब हमने फर्स्ट सीजन किया, वो बहुत ही एक क्या कहते हैं ना, बहुत मुश्किलों में किया मुझे लगता है, क्योंकि बजट उतना नहीं था. वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ शूटिंग डेज आल्सो. तो बहुत पैशन से किया. उस सब का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए सेकंड सीजन में ऑटोमेटिकली हम बॉन्ड हो गए. बिकॉज इतना अच्छा आपको जब फीडबैक मिलता है तो आपका भी you feel good about the whole project, about the whole process. And I think that is the reason that all this effort in the second season was more enhanced, I feel. I think जैसे मम्मी ने बोला कि वर्कशॉप का बहुत फर्क पड़ा था. तो जब हम लोग पहली बार मिले थे तो वो होता है ना, कभी कभी एनर्जी एक ऐसी मिल जाती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है कि अच्छा अभी हमें आइस ब्रेकिंग करनी है. आई थिंक आइस ब्रेकिंग ये सब घर पे करके थे. और हम लोग जब मिले थे तो हम बहुत नॉर्मल, ऐसा लग रहा था कि हमें मिलना था, हमें साथ में काम करना था, इसीलिए हम मिले.
तो किसी में कोई किसी भी टाइप का सीनियर अच्छा मैम, क्योंकि मैं गीतांजलि मैम को लेके वो था कि अरे यार मैंने इतना काम देखा हुआ है, या जमील सर का काम देखा हुआ है, या बिट्टू की मम्मी का काम देखा हुआ है, तो मैं थोड़ा ऐसा था कि कैसे होगा, मजा आएगा, क्या होगा। बट जब मैं मिला इन लोगों से, इवन हर्ष के साथ भी, तो जब मैं मिला तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ यार, इन लोगों ने किसी ने कभी एक बार भी मुझे लगा नहीं कि अरे मैं इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ या इतना एक्सपीरियंस है उस हम लोगों में और ये ऐसा होगा। तो सारी बॉन्डिंग वर्कशॉप में हो गई। फिर हम लोग कहीं पे भी जाते थे तो हम साथ में ही जा रहे हैं, तो वो फीलिंग वहां से आनी शुरू हो गई थी। एंड फिर तो शूटिंग और वो सारी चीज, आई थिंक हमने हमने अपने आप को पर्सनली बहुत सामने रख दिया था, एकदम जो जैसे थे वैसे ही हम मिलते थे। और आई थिंक हमारा बैकग्राउंड भी सबका सिमिलर है, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो गई थी हम लोगों के लिए कि हम सब एक ही बैकग्राउंड से आ रहे थे, मिडिल क्लास, और सबने तहरी खाई हुई है, सबने पीले चावल खाए हुए हैं। और हर्ष मायर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। तो आइस ब्रेकिंग का जो आप कहते बॉन्डिंग कैसे बनी, वो आई थिंक हर्ष का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो किसी को एटीट्यूड या फेकनेस रखने ही नहीं देता है। आप अगर उसके सामने इंग्लिश में बात करेंगे और आप गुल्लक कर रहे हैं, तो वो सीधे आके आपको बोल देगा अच्छा ये तो अभी प्रोफेशनल हो रहे हैं। तो स्पेशली पापा के साथ ये हुआ है कि उसने पापा को इतना कॉन्शियस कर दिया कि वो बेचारे अपने घर वालों से इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। ऐसा काफी मजेदार रहा। So Harsh, you're the designated icebreaker on this crew. बेसिकली मैम ऐसा है कि मुझे ना काम ऐसे ही पसंद है, मैं थोड़ा स्ट्रेस में काम नहीं कर पाता, तो मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी सेट पे जाऊं तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करूं। लेकिन कई जगह लोग स्पेस देते हैं उसके लिए और कई नहीं देते, लेकिन ये लोग इतने मतलब मजेदार थे। नॉट इवन हमारे सब, गीतांजलि मैम, जमील सर तो थे, लेकिन बाकी जो हमारे पहले डायरेक्टर थे, अभी पलाश भाई, शहरी भाई, इन सब लोगों ने इतना स्पेस दिया ना कि भाई तुम्हें जो करना है करो। और ये तो मैं आके फिर छेड़छाड़ करने की मेरी थोड़ी सी आदत है, तो मैं वो करता रहता था। और मैंने ये कोशिश की कि इन सबको मतलब परेशान करता रहूं, वक्त वक्त पे शॉर्ट्स खराब करता रहूं। और कभी कभी बेचारे बहुत इरिटेट भी हो जाते थे, लेकिन वो फन था, मुझे उससे बहुत किक मिलती है और मैं शूट करता रहता हूँ। You know, I want to talk about two scenes. The first is Gitanjali, your scene in episode 2, where you finally kind of tell the men that you love so much, what it takes to do what you do, what it takes to hold a house together. You were so good. It just such a, really, like, it just broke my heart in so many ways, because this is the story of so many women across this country. Tell me about doing that scene. What was going through your head? एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट दुर्गेश को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी लाइनें दी और उनका जो साहित्य का अभ्यास है वो बहुत गाढ़ा है। तो उस वजह से उन्होंने उनकी जो इंस्पिरेशंस हैं वो उसका पूरा निचोड़ उस पूरे एपिसोड में आया था। उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता भी हमें रिहर्सल्स के दौरान सुनाई थी, जिसका इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ये एपिसोड लिखा था। मुझे एक बात यहाँ पे ऐड करनी कि पहले सीजन में निखिल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने उसको पूछा था कि ये मम्मी इतना चिल्ला क्यों रही है, हम उसको थोड़ा टोन डाउन नहीं कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी मुझे, कि उन्होंने कहा अगर आप चिल्लाएंगी नहीं तो आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। तो मुझे सच में मैं मतलब I was stunned with that comment, and really why women are so shrill, because they are not heard unless and until they shout. Men don't listen. We live in a patriarchal society. Men don't listen to women, and that's why they have to shout. और मुझे वो बहुत ही चीज मेरे मन में रही है। और दुर्गेश ने मुझे बहुत सारे सवाल होते थे, मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, मैंने बहुत तंग किया है दुर्गेश को, पलाश को, सबको टीम में। लेकिन द क्रेडिट गोज टू द राइटर एंड द डायरेक्टर, बिकॉज दे कन्विंस्ड मी फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। और एक बहुत अच्छी बात है, जैसे सभी ने कहा, कि हम ये जो शूटिंग का माहौल है वो बहुत एक्टर के लिए बहुत ही कंड्यूसिव है, क्योंकि बहुत स्पेस मिलती है, हम सवाल पूछ सकते हैं, हमारे सारे क्वेरीज का जवाब दिया जाता है, अकोमोडेटिंग है सब लोग। तो अगर आपको कुछ चीज नहीं आ रही है,
आपसे कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ही हेल्प होती है। और मुझे एज अ many a times I'm a Maharashtrian, I'm a Marathi, so many a times I get stuck in some words, I sometimes वो सुर नहीं मिलता है, वो पिच कहीं या टोन कहीं चला जाता है, तो at every moment everybody has supported me. And I completely this second episode I dedicated to Durgesh. It's all his credit. Durgesh, I'm going to ask you about writing, but before that, I want to also talk about the other scene, which is that last scene. The expression, Jamil, in your eyes when Anu has his breakdown and when he hurts you very badly by saying, "Ki, what have you achieved?" And but that the staging of that last scene where they come back together as a family and you kind of take him, closer to you and you cry and when he cries and everybody, I mean, I was crying. I think everybody who's watching it is going to be crying. Tell me about that specific scene. What were all of you thinking? How did you stage that, Palash? How did you create it? And that scene was the toughest for me. क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें dialogues hardly there are Yeah. dialogues. So just all the actions are through gestures और मतलब सिर्फ expressions है लोगों के. क्योंकि और सारा culmination and we can't go overboard. जैसे ये भी नहीं कर सकते कि बहुत melodrama नहीं करना है. It's just touch of the father. एक हाथ कंधे पे आता है और हल्का सा, और अन्नू भी बहुत नहीं रोता है, हल्का सा बिलखना, पापा का वो समझना, उनकी आंखों में आंसू आ जाना, तो ये था मेरे लिए तो बहुत टफ सीन था करना. बट वी प्लान्ड फॉर इट क्वाइट वेल एंड वी ऑल वर वेरी क्लियर कि व्हाट वी वांट, मतलब कितना इमोशंस हमको चाहिए, कहाँ तक ऑडियंस को लेके जाना और कहाँ रोक देना, देन लेट देम सिंक इनटू दिस फीलिंग ऑफ कमिंग बैक टुगेदर. तो for me, that came from a very real space. I took the IIT-G exams and I didn't get through. हिंदी सर, हिंदी Extremely, देख लीजिए. तो हुआ ये कि IIT-G एग्जाम में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ और मैं बहुत डिजेक्टेड फील कर रहा था. और मेरे भाई ने ऐसे मजाक में भी, सिटिंग एट द टेबल खाना खा रहे थे हम लोग, तो उन्होंने ऐसी कुछ बात चल रही थी. माय ब्रदर डिड नॉट गेट अलोंग, माय एल्डर ब्रदर डिड नॉट गेट अलोंग सो वेल विद माय डैड एट दैट टाइम. तो कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसी मेरे डैड से उन्होंने कहा कि ये देखो, ये इंजीनियरिंग IIT दे रहा था, इसने क्या उखाड़ लिया. जस्ट दैट वन वर्ड, क्या उखाड़ लिया. एंड माय डैड अरे सर, लिटरली हम एक्टर्स इतने भरे बैठे हैं ना, मतलब हम शूट पे भी ये गाना चला देते थे, हम सब रो पड़ते थे. उनको लगा कि इन्हें चुप कराना बड़ा मुश्किल है. सब लोग मतलब एक्टर्स को लगने लग गया था कि बहुत रोना धोना हो रहा है. तो मैं बोलता नहीं, बहुत रोना धोना नहीं. कैलाश भाई रात में सोच में पड़ जाते थे कि यार अब मैं ये एडिट कैसे करूंगा, इतना सारा रो रहा. उनको बस ट्रैक दो, ये रोने लग जाते हैं. और सबसे ज्यादा पापा रोते हैं, सबसे ज्यादा पापा रुलाते हैं. और तुम भी यार, तुम कितना रोते हो भाई. तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत क्या सर. हाँ सर. तो जब ये मुझे दिखा इसमें, तो मुझे बिल्कुल कनेक्ट हुआ वो. और मेरे फादर ने भी वही काम किया जो मैंने किया, कि वो भी मुझे, he just put his arms around me और he said, he didn't say anything, he just said, नहीं कुछ नहीं, जिंदगी आगे है बेटा, ये तो एक मौका था, बहुत मौके हैं. And after that I went quiet for about 3 months. I did not speak to anyone. Well then, तो मैं कह रहा हूँ, it came from a very real space. जैसे मैं सर की बात को ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो जो सीन हो रहा था जब, और उससे पहले मेरा एक सीन होता है अमन के साथ, which was lovely. Both of you were so good. Thank you. तो क्या होता है, जैसे सर टच की बात करें तो जैसा दुर्गेश भाई ने लिखा था और जैसा पलाश को चाहिए था, मैं समझ पा रहा था, लेकिन मैं उसको कहीं से भी फेक नहीं करना चाह रहा था कि कहीं से भी मुझे 1% इमोशन फेक नहीं होना चाहिए, वरना ये खराब हो जाएगा. तो मैंने भी अपनी रियल लाइफ का वो किया. जब मैं बॉम्बे आ रहा था, और क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे फादर का टच
रहता ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं ये फादर का टच क्या होता है, क्योंकि हम बात नहीं करते, हम हग नहीं करते रोज, हम दूरी बना के रखते हैं, बात भी नहीं होती है। तो जब मैं बॉम्बे आ रहा था और मुझे लखनऊ ट्रेन पे बैठा रहे थे, तो वो पहली बार था जब पापा ने मुझे टच किया था, बहुत सालों बाद। एक टच पता चल जाता है, एक टच होना अलग बात है, बट एक प्यार से टच करना। तो मैं अपना रोका हुआ था, बट वो ट्रेन में जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जाने लगे वो, तो मैं फिर मुझसे नहीं रहा गया। तो वो मोमेंट, वो जब मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा था, जिस तरीके से दुर्गेश ने एक एक सीन को बुन के वहां तक पहुंचाया है, तो मेरा थॉट सबसे पहले वही गया था कि अच्छा, जब भी ये मैं करूंगा मैं इस थॉट को रखूंगा। तो वो सर का, इवन जमील सर और मेरा एक कनेक्शन भी है कि वो हम दोनों इतने इमोशनल रहते हैं सेट पे कि हाथ भी लगा दिया उस फीलिंग से, तो हम लोग ऐसा बह जाते हैं। तो वो वहां से वो हुआ था। और पलाश डरा रहता है कि अरे बस करो यार। मैं कट पॉइंट ढूंढता रहता था। आज तो इस हद तक जाता था कि सर 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 प्लीज सर रोना नहीं, आपके क्लोज मिलेंगे, रोना नहीं। अभी नहीं, डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। मैंने कहा भाई एग्जॉस्ट क्या, ये तो धारा प्रवाह बहता रहेगा, मतलब I love that. Dhara Prabhav behta hai. Harsh, I feel your character changes the most in the second season. You know, what he is, wo pehle episode mein when he's talking about Annu Bhaiya's prayers and telling that whole story, and then to the last episode, what was hard for you in this? Because, you know, we see him as not somebody you take very seriously, but then there's that one moment where he talks about Jhingur ki awaaz, or it's just, to me it was like a little touch of poetry in this boy who till then we haven't even really taken very seriously as a character. What was it like for you to play him in this season? इसका सारा क्रेडिट दुर्गेश भाई को जाता है कि उन्होंने ये इतने अच्छे तरीके से, मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि तेरा नेक्स्ट सीजन में बहुत काम है भाई। मैंने बोला था हाँ ठीक है देख लेंगे। और मेरे लिए डिफिकल्ट ये था कि 2 साल बाद मुझे वही करना था, और 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने वो पहला करेक्टर जो अमन मिश्रा का किया था वो स्टैब्लिश कर दिया था किसी तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने काम किए हैं हिचकी या जो भी काम मैंने पहले किए हैं, वो मतलब वो वैसे स्पेस में है कि जो मेरा कंफर्ट है, यहाँ मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ये करने के लिए। मुझे कुछ और, लिटरली कुछ और बनना पड़ता है। मैंने पलाश भाई से बहुत सलाह ली, मैं बार बार आके हर शॉट के बाद पूछता था। पलाश भाई को थैंक यू बोलूंगा कि भाई, शहरी भाई को बोलूंगा, बार बार पूछता था कि भाई वैसा लग रहा है ना जैसा मैंने 2 साल पहले किया था। और कहा तू लग रहा है, तू कर अपने हिसाब से कर। और फिर उसको करना। और वो जो झिंगुर वाला सीन था, वो भाई जानते हैं कितने टेक लगे थे उसमें। ये लोग परेशान हो गए थे मुझसे। क्यों, कितने टेक लगे थे? 50-60 तो लगे होंगे। नहीं, और एक राइट टेक मिला था मैम, आफ्टर 40 टेक्स आई थिंक, जो एक राइट टेक मिला था और जस्ट आखिरी लाइन बची थी, और ये इतना ओवरवेल्म हो गया कि बीच में खड़ा हो गया कि यस मैंने सही कर दिया था। मैंने बोला अरे एक लाइन बची थी यार। तो मतलब इन लोगों ने इतना टॉलरेट किया है ना मुझे। और वो क्योंकि मुझे क्या, बार बार कभी मेरी आवाज ऐसी नहीं है तो मैं वैसे ही मैं ऐसे करके उसमें बात करता हूँ, और वो हर बार कभी वो मिस हो जाए। और ये दोनों जमील सर और वैभव भाई ना मेरे बाहर सामने बैठे रहते थे, तो इनका ये प्लान था कि आज इसका वो बड़ा सीन है, आज इसको हमें परेशान करना है। और ये बार बार देख के मुझे बीच सीन में ऐसे कर रहे हैं। और ये जो तुमने पूरे 25 दिन और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने इनको बोला, मैंने इनको सामने से हटाओ या तो इसको शूट बाद में करते। तो तरीके से हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर हाँ मतलब अभी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ सब कुछ, तो मजा आ रहा है। मेहनत as we move slowly into the interview, you will realize that they actually have the same chemistry off screen. They are exactly that family. तो ये तीनों मिल करके मम्मी को परेशान करते हैं, और ये 4 साल से मैं यही देख रहा हूँ मैम। थैंक यू श्रेयांश, थैंक यू श्रेयांश। I love you all. मैम से जब कुछ ऐसा हो जाता है ना कि गलती हो जाती है डायलॉग, तो उनका एक पैटर्न है, वो हर बार सर दोबारा तो वो हमेशा ऐसा करती है। बट तुम अपना नहीं बताओगे? झिंगुर वाला जो मैम ने पूछा है कि सॉरी आवाज नहीं आ रही है, एरर हो रहा है, कुछ एरर हो रहा है इसमें। मैं कह रहा हूँ मेथड एक्टिंग नहीं बताओगे कि झिंगुर वाली आवाज तुमने कैसे होगी? तो मैं नीचे, एक सेकंड, मैं नीचे था और मैं ऊपर जाता हूँ रूम में, हम लोग जहाँ बैठते हैं, तो दरवाजा खोलता हूँ, लाइट वाइट ऑफ है, और अमन मिश्रा फोन में झिंगुर की आवाज सुन रहे हैं। तो मैंने बोला क्या कर रहा है? नहीं वो झिंगुर की आवाज
Durgesh, you've been very quiet throughout. We need you to tell us, how do you write the way the scenes that have, in the series, also the lines. Just in the scene between the brothers, where he says ki naak bahut achhi hai. That was such a emotional moment, and you smiled and yet you were weeping, and then just the sheer humor of it, for Aman to say to the neighbor who's fab, Bittu ki maa is this fab, saying कि ये पर्दा पहन के कहाँ जा रहे हो आप? ये lines कहाँ से आती हैं? मैम ये एक्चुअली ये सब कुछ लाइफ जर्नी है सारी, मतलब जिन लोगों से मिला हूँ और जिन लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, मतलब मैंने अपने घर की औरतों से लेके अपने गांव से अपने शहर में और बड़े शहरों में जहाँ जहाँ ट्रैवल किया, मैंने औरतों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, इंक्लूडिंग माई मॉम। तो मैं जैसे अच्छी साड़ी पहनने पे भी मेरे फादर बोल देते थे, अरे तो खिड़की का पर्दा लग रहा है। तो मुझे हमेशा से, मैं बहुत छोटा था तो मैं भी हंस देता था। फिर ओवर द इयर्स व्हेन आई ग्रो अप, तो मुझे ये लगा ये गलत बात है। वो खराब कपड़े में भी अच्छी लग सकती हैं और अच्छे कपड़े में भी अगर वो गुड लुकिंग नहीं लग रही, तो हमको एज अ सोसाइटी, एज अ मैन, मुझे ये कहने का कोई राइट नहीं है कि आप, मुझे मजाक उड़ाने का कोई राइट नहीं है। तो मुझे ये सारी रिजर्वेशंस ओवर द इयर्स, जब मैं किताबों में और लिटरेचर में जब इन्वॉल्व होता गया, तो मुझे जेंडर बायसनेस और ये सारी चीजें भी समझ में आने लगी। तो वहां से मुझे लगा कि मैं अगर बहुत डायरेक्टली ये सारी बातें कहूंगा तो ये कंट्री तैयार नहीं है, ये कंट्री प्रीची चीजों को लेगी नहीं। तो मुझे ह्यूमर ढूंढना पड़ा, ह्यूमर का रास्ता ढूंढना पड़ा। और खिड़की का पर्दा भी अगेन मैंने एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बहुत यंग लड़का है अमन, और उसने खिड़की का पर्दा बोला, तो मैं कहीं ना कहीं दूसरी जनरेशन जो उस फैमिली में पल रही है, बढ़ रही है, तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने वो सब ट्राई किया। एंड ह्यूमर का जो पार्ट है मैम, लाइक जैसे आपने बोला कि इतनी अच्छी तो नाक है तुम्हारी, तो वो भी अगेन लाइफ से आया कि 2 झापड़ जब हम लोग खाते थे पापा से, फिर माँ बोलती थी, अरे तू तो मेरा राजा बेटा है। तो मुझे ये लगता था, अच्छा अभी तो 2 झापड़ खाया था, अभी मैं राजा बेटा कैसे हूँ, है ना। तो फिर मुझे वो सारी चीजें वहां से लाइफ से आती गई। एंड मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट लेके ट्राई किया कि मनोहर श्याम जोशी या फिर रेनू, फणीश्वरनाथ रेनू और डॉक्टर राही मासूम रजा, इन लोगों का जो ह्यूमर था, जो दूरदर्शन के गोल्डन डेज में एग्जिस्ट करता था, जो मुझे समझ में आता था, जितना पढ़ा था मैंने, कि उसके वो बहुत सटल ह्यूमर था मैम। तो मुझे लगा कि थोड़ा सटलिटी वी कैन ट्राई, मतलब ये इस पे हमारी बहसें भी होती थी, टीवीएफ में डिस्कशन भी होते थे कि ओवर जा रहा है, समझ में नहीं आएगा ब्रो, ये सब होता था। पर आई थिंक वो लाइफ जर्नी है, जहां जहां से निकल के आया हूँ और वहां से ह्यूमर आया है। ट्रेजेडीज का रहना, मुझे लगता है लाइफ में आपको ह्यूमर सबसे ज्यादा देता है। तो आप जितनी ट्रेजिक लाइफ जीते हैं, आपका ह्यूमर उतना स्ट्रांग होता जाता है, वो किसी भी तरह की टाइप की होती है। Palash, tell me the challenges of shooting in such a confined space. क्योंकि जो घर है, it's like a 5th character in the series. And we come to know it so closely. वो the washing machine in the courtyard and that kitchen with the grill और भाइयों का कमरा. How do you struggle with making it visually interesting, even though you only have those 4 walls? It was a very small house, ma'am. लगभग ऐसा 500-600 स्क्वायर फीट का छोटा सा वो घर था, जिसमें एक आंगन था। है तो कहाँ? ये भोपाल में। नहीं, ये भोपाल शहर में ये। हाँ जी, ये हिंदुस्तान के हर शहर में है ये। हिंदुस्तान के हर शहर में, करेक्ट। तो मेन apart from what Durgesh had written or me and Sherry and even with Arunab what we had discussed कि परफॉर्मेंस में क्या लाने, जैसा आपने बोला है कि घर का भी एक कैरेक्टर है। अब उस घर के कैरेक्टर को हाउ डू आई यूज इट, एंड स्पेशली सीजन 1 आप लोगों ने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है। तो सीजन 1 से हाउ डू आई गो कीपिंग द सैंक्टिटी, द प्योरिटी ऑफ सीजन 1 एंड टेक इट 1 नॉच हायर इसमें। तो वो था घर के कैरेक्टर को हम यूज करते हैं, घर के स्पेसिस को विल यूज इट। तो आप देखोगे, आप वी सी मॉम थ्रू द विंडो, जहाँ पे इस तरह का एक कॉन्वर्जेशन है, एक मर्द, तीन मर्द एक साथ खड़े हुए हैं और माँ अंदर आपको किचन के विंडो से दिख रही है। तो मतलब कुछ एक था कि इसको एक मीनिंग देना है। मतलब देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग स्पेसेस, दरवाजों के थ्रू हम इनको देखते हैं। अब जैसे
एपिसोड 3 का अगर आप मैम वो सीन देखेंगे जहाँ पे कार्ड में कुछ एरर हुआ है जिससे फादर ने लोड ले लिया है, and they are sitting inside the room. So if you see the chemistry, it's 3 versus 1. Dad is at one corner, and 3 of them are together at one place. और डैड को जानबूझ के थोड़ा सा नीचे रखा है क्योंकि उस टाइम पे आई वांटेड ऑडियंस टू फील दैट डैड इज ओवर रिएक्टिंग. डैड नीचे हैं, थोड़े से बाकी कैरेक्टर्स ऊपर बैठे हुए हैं, बाद में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो वो काफी चैलेंज था करना, एंड वी हैड प्लान्ड इट. आनंद इज सच अ गुड डीओपी. आनंद है शॉट गमक घर, आपने देखी होगी वो. Of course. तो उसके साथ बैठ के हम लोग ने बहुत सारी प्लानिंग करी कि हाउ डू वी यूज कलर्स. 4th एपिसोड से वी स्टार्टेड गोइंग लिटिल कोल्ड, एंड देन 5th में एंड में वी रीगेन द वार्मथ. This was literally the first show, which we started shooting just when Unlock 1 was announced. Yeah. और मतलब like you said, confined space में और ज्यादा डर लग रहा था कि social distancing कैसे करेंगे, how many people we would keep on floor. मतलब I literally used to get frantic calls from Arunab asking कि भाई इस डिपार्टमेंट में किसी की तबीयत खराब हुई तो कैसे करोगे. तुमने पक्का पूछा है, are the actors ready? And these guys have been so supportive. That confined space we literally refer to as the temple. मतलब वो मिश्रा निवास मंदिर है. और एक सिंगल लाइन मैम, क्योंकि बिकॉज इट वाज पैंडेमिक और एक्चुअली में नहीं पता था हाउ इट विल शेप आउट, जो आई थिंक वन सिंगल लाइन विच वी ऑल सैट डाउन एंड जिसका मंत्र उच्चारण किया था हमने आप ये समझ लो कि स्क्रिप्ट लिख दी है बिल्कुल एक होली बाइबल गीता कुरान की तरह. दुर्गेश ने हमारा मंदिर रेडी है जो मिश्रा निवास है. ये 4 और मतलब सुनीता मैम 5 हमारे देवी देवता हैं जिनको जाकर के उसमें खड़ा कर देते हैं और बाकी शो बन जाएगा अपने आप. So my last question is to the senior Devi Devta, to Jamil and Gitanjali. You both have done such good work for so many years. I mean, Jamil, I remember you from Loins of Punjab, a film which I loved. Tell me, do you feel as actors you're finally getting your place in the spotlight now? Yes, we are, and thankfully so, because this OTT platform has democratized the whole, the industry and the entire process of working, not only for the actors but for the technicians also. And it is, I think it was, it is a thing which everyone was looking forward to, and it has finally happened. अब वो जो एक स्टार कोई नहीं है, अब टैलेंट स्टार है, कंटेंट स्टार है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी. मुझे भी लगता है कि चूंकि क्या हुआ है कि लॉन्ग फॉर्मेट में राइटर्स को भी स्कोप मिलता है कि ना कि सिर्फ जो प्रोटोगनिस्ट है उनके बारे में लिखे, लेकिन आजू बाजू में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी कहानियां वो लिख पाते हैं. और आई फील दैट नॉट ओनली लीड कैरेक्टर्स बट ऑल्सो स्मॉल कैरेक्टर्स, लाइक आई प्लेड अ स्मॉल पार्ट इन सिलेक्शन डे or a small part in Sir, but that also gets recognition because लोग अपने समय से देखते हैं. नॉट फिल्म स्क्रीन, आप जब थिएटर में जाते हो तो कुछ समय निकाल के जाते हो, यहाँ पे लोग अपने इत्मीनान से देख पाते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हर एक पात्र हर एक कैरेक्टर को उसका ड्यू क्या कहते हैं स्क्रीन प्रेजेंस जो है उसका वो ऑडियंस के मतलब audience can recognize it, and they also, because of social media, they also connect to us and let us know कि आपका ये कैरेक्टर हमें अच्छा लगा. और मेरे लिए it has been basically my journey started on screen because of Caught. तो Caught के कारण मुझे सभी जो काम मिले वो just because of Caught it has happened. तो वो सब ड्यू क्रेडिट चैतन्य और विवेक को जाता है. What a wonderful film that is, and you were so good. Thank you to all of you. Really, it's been such a pleasure. I could go on and on quoting your dialogues back at you. I won't bore you anymore. Thank you so much, and congratulations again. Thank you so much. Thank you, Anupama. Thank you. बस मैम मैं मतलब आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा तो थैंक यू. मैं बहुत आपका वो पोस्ट जो आपने ट्वीट किया था मैंने कुछ 70 बार पढ़ा है उसको, और ये मतलब एक ड्रीम था मेरे लिए पर्सनली. मैंने एक वो लिस्ट बनाई थी कि एक दिन आएगा जब मैं
ओवरवेल्म्ड ऐसा बहुत। पहले तुम बोलो, चलो। अरे नहीं मम्मी, बोलिए बोलिए। नहीं, यहाँ पर तो माँ को पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले आती है माँ। अच्छा, इसमें मैं फिर से लाइन भूल गई, बता दो मुझे। अब तुम करो। लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू फिल्म कंपेनियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन को।